Hello and beautiful evening, friends, and welcome to Fitness Talks with Anand on the platform of ISFS, that is ISST School of Fitness Sciences. This program is in association with United Health and Fitness Forum, which is the first registered federation of fitness industry in India. Today we have in the season 4 in episode 3 we have a very good one of the this season is specifically for people for trainers, for personal trainers in this industry. We can always learn from each other, so we are inviting all the masters of our industry in personal training and trying to understand their journey, learn from each other, learn from them, take some tips from them, and improve ourselves definitely, because our industry needs a lot of work to be done. Also, we will discuss something about how education is important in our industry. So today we have a very good friend of mine, and we were in the same school, fortunately. A very dear friend of mine, Mr. Laukik Zadav, with us. I'll just call him online. So Laukik is online. Just give me 1 minute and I'll get him on board. I hope everybody is doing well today. We have some viewers also coming in. Just 1 more minute and we will have him online. Hi Sahil, hi Mutansh, hey Sanket. So sometimes there is the new way that we are doing. We are doing online shows now, online pops, so we get maximum reach. And we started all this in the lockdown phase. So certain times there are network issues and some technical glitches which keep happening. We will have it with us very soon. So if you guys have any questions to Lokik as you go through this process and you're listening to us, and if you have any questions that you want to ask him and get his advice on it, please do write to us in the comments. Hey Amol, Hey, hi Anand, can you hear me? so we're just waiting for Lokik to come online. So Pratik, I would just like to ask you, are you able to hear us? Are you able to see us and hear us both? Lokik, you can just, or Pratik, you can just write in the comment section if you can hear us. Anybody from the viewers, can you just confirm? Are you able to hear me clearly? And are you able to see me? Also, if Lokik is visible, because I'm still getting the loading sign and getting him online. It happens on the internet. There's still certain times a lot of connectivity issues that are happening. All Lokik already there, can see and hear him. Okay. Yes, Prasad sir, good to see you. I Fortunately, guess I'm there is not some able to network see problem. Lokik We'll for be some starting in reason. 2 minutes. Uh, okay. Same. I'm also not able to see Lokik or hear him. Okay, we will just wait. I'll just cancel the request and send it again. Okay, we've sent the request across. As soon as Laukik accepts it, we'll be able to see him online. Oh, Am I cool. audible? Yes, yes. Now you Finally, are, brother. Welcome, finally, welcome, finally. Laukik, and welcome to Fitness Talks with Anand on the episode 3. Uh, Thank you, I'll give Anand. a brief introduction about you first. So, Laukik, Yes. there's a big list, so bear with me.
Laukik has completed knee rehab workshops and pre-rehab 1-to-1. He is level 1 and level 2 IFTI trainer. He's also done PEPT level 1 certification, BICP Advanced Physics Transformation Master Trainers level 1. He's also a certified personal trainer and a CPR holder. He's completed AIFF D license football coaching in 2014. Bachelor's of Arts from Pune University. Laukik is also a health and fitness expert, a weight training expert, nutrition expert, strength training expert, functional training expert, professional football player himself, and has an in-depth knowledge of football coaching. Laukik's accomplishments are he's been the captain of Maharashtra under-16 football team, Air India FC under-19, Mohan Bagan FC under-19, Maharashtra under-21, Mahindra United FC Indian Football League, Senior Nationals Maharashtra he's played, AIFF Pailan Arrows Indian Football League, Mumbai Tigers FC and Kenkar FC. So Laukik is also a professional football player and a professional football coach. So Laukik, welcome to Fitness Talks, and I'm very excited to have you over. A lot of people don't know, but we both are friends. We are from the same school. Very excited today to have you and hear from you. So, Laukik, I would like to first start with understanding your journey into the fitness industry. You have been a sports person always. You've been involved in football a lot, and now you're also into coaching. So, I would like to know, how was the transition? How did you think about getting into fitness industry also? Okay, perfect. So Anand, first of all, thank you for a wonderful introduction. So मुझे ज़्यादा introduction देने का जरूरत नहीं पड़ेगा. But yes, fitness journey, I never imagined कि I was a professional player. I'm still playing as a professional football player, but I've never thought कि I'll come into fitness industry. But this is my one of the best part. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि after long time, actually I'm talking about fitness. And firstly, I'll like to tell you all कि ISFS is doing a wonderful job. कि जिस दिन मुझे पता चला कि in Pune there are fitness regarding certifications are going, but now you people are doing a wonderful job. तो मुझे पहले उसके बारे में अच्छा लग रहा है. So now I'll start with my part. कि my fitness journey was exactly started actually when I was 5 to 6 years. जब मैं 5 से साल का बच्चा था तब से मैं just one second, Laukik. I'll just like to interrupt you here. There is a slight network issue, I guess. There's a loading. Your screen is not coming in. Also on Instagram, what happens, we also got to know this with experience, that we see ourselves very clearly, but our frame is getting cut. So I would request you to sit slightly away from the camera. I will do the same. So perfect. Yeah, perfect. Also, we would like to know more about what is LFS. We can see that in the background and on your t-shirt. Exactly. So, जैसे मैंने बताया, you can see one is LFA and one is LFS. So, LFA is Laukik Football Academy. हम लोग को football academy from where we started. ये पहला start हुआ था. उसके बाद even LFS is Laukik Fitness and Sport. So, basically हम लोग के दिमाग में कुछ भी ऐसा नाम नहीं था कि हम लोग को LFS रखने का है, LFA रखने का है. Me and my team, Parag and all my team from coaches, हम लोग बहुत जगह coaching करते थे football का. ठीक है. And we used to train in fitness also. But then we realized कि अगर हम लोग ने खुद का academy अगर हम लोग ने चालू किया, then we get more responsibility और हम लोग we can get an upper hand, like we can do anything. Because when it comes to India, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में certifications है, but ज़्यादा लोग certification नहीं करते. But फिर भी गलत पे गलत techniques, trainings के सब promote होते जा रहे. So this was the only reason कि मुझे एक लिमिट तक ऐसा लगता था कि if I'm working somewhere or I'm doing work with someone कि उधर गलत टेक्निक सिखा रहा है और फिर भी मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा instead of that we'll start on our own. भले एक मेंबर से हम लोग चालू करेंगे, लेट्स सी कैसा होता है. तो हम लोग ने एक मेंबर से स्टार्ट किया. देन नाउ ऑलमोस्ट इन LFS we have more than 100 people जो फिटनेस में मसल गेन, वेट लॉस, फैट लॉस, इसमें ऑलरेडी 100 मेंबर्स आर देयर, इन विच जिम वर्कआउट्स भी रहता है, फंक्शनल ट्रेनिंग्स भी रहता है. एंड इन LFA Academy we have almost 120 kids. We have 4 venues in Pune right now. So football academy also it's completely targeted only for under 14 कि हम लोग को प्लेयर बनाने के. And how I started actually, तो obviously my family was also into this. Sports नहीं था पहले से. तो जैसे मैंने बताया, जब मैं 6-7 साल का लड़का था,
Then when I used to even run on the ground, तब भी ऐसा था कि my mom and dad they had almost 500 kids on all age groups कि जो दूसरे लोगों को ट्रेन करते थे, तो उसमें मुझे आदत पड़ गया कि यस, इवन आई स्टार्टेड लविंग दैट पार्ट कि एक बच्चे को हम लोग सिखा रहे हैं। एंड दैट आई वाज 6 ऑलमोस्ट 6 7 हार्डली, दैट इज नॉट एज टू बी एज अ टीचर। बट जैसा टाइम चला आगे आगे चला जाता गया, देन आई केम इनटू फुटबॉल। आई वाज गुड इन ऑल स्पोर्ट्स, बट आई एंडेड अप प्लेइंग फुटबॉल देन आई गॉट इंटरेस्ट इन फुटबॉल। एंड व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जैसा मैं फुटबॉल खेल रहा था, इवन आई वाज 14-15, आई थॉट कि मुझे खुद को सीखना चाहिए कि फिटनेस में अगर अगर इफ आई एम अ फुटबॉल प्लेयर तो मुझे स्ट्रेंथ वर्क क्या करने का है। बिकॉज एक कोच अलग बोल रहा है, दूसरा कोच अलग बोल रहा है, तीसरा कोच अलग बोल रहा है, तो मुझे भी पता रहना चाहिए कि साइंटिफिक उसके पीछे रीजन क्या है। दैट वाज द ओनली रीजन आई स्टार्टेड। जो मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन किया फॉर द फिटनेस कोर्सेज, तो मैंने इसके लिए फिटनेस कोर्स ज्वाइन किया कि मुझे सीखने का है। दैट टाइम देयर वाज नथिंग इन माय माइंड कि मुझे लोगों को सिखाने का है। So this is the way I came into that. Then once I started, I came to know this is a very, very, very deep knowledge. मतलब हम लोग बोलते हैं कि अगर घर में भी हम लोग बात करेंगे, नॉर्मल अगर फ्रेंड्स लोग रहेंगे, हम लोग क्लाइंट्स रहेंगे, एक क्लाइंट भी डाइट का सिखा के चला जाता है। एक क्लाइंट भी बोलता है, या एक मम्मी डैडी बैठी है तो डैडी ही टीचर है, डैडी ही कोच है, वेराज उनको कुछ भी पता है कि फिटनेस के बारे में। देन आई थॉट कि मुझे तो ऐसा गलत नहीं करने का, बिकॉज इफ आई कैन सी रॉन्ग थिंग्स, एटलीस्ट मैं उसके बारे में सीखूं। दैट्स व्हाई एजुकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। Then I started doing courses. So exactly 7 years back in Pune, I started with my gym. जैसा मेरा प्रोफेशनल करियर फुटबॉल से मैं बाहर आ गया, I wanted to start my academy फुटबॉल की, जिसमें मुझे प्लेयर्स बनाने के and I want to promote in professional clubs. तो वो मैंने चालू किया। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे ऑलरेडी कोर्सेज हो गए थे, then I started joining in few areas की, ठीक है, मैं एक दो जिम्स में जाने लगा। I started training the people. But this thing is very, like I can say, सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे मिला कि once I joined one gym, it was just my 2 days. एक महीना भी मुझे नहीं हुआ कि मतलब लोगों को एक दो मेंबर्स मिलने के लिए दे टेक, मे बी एक पर्सनल ट्रेनिंग मेंबर मिलने के लिए भी 1 week 1 month या मे बी 2-3 months जाएंगे। बट इन 1 month ऑलमोस्ट आई हैड गॉट 20 clients फॉर पर्सनल ट्रेनिंग एंड नॉट इवन बैच। तो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए थे। देन आई अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, इसका मतलब कुछ तो तू अच्छा सिखा रहा है, इसके लिए लोग तेरे पास आ रहे। बट दिस इज नॉट द एंड, अभी आपको और लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि नाउ द पीपल स्टार्टेड कमिंग, एक 60 years सीनियर सिटीजन स्टार्टेड कमिंग टू मी, देन किड्स स्टार्टेड कमिंग टू मी, देन मे बी 30-40 years के भी लोग आने लगे। तो मेरे लिए सबसे मेन चीज ये थी कि अभी आई हैव अ मिक्स एज ग्रुप फुटबॉल, दैट इज टोटली डिफरेंट, उसमें किड्स आ गए, बट किड्स को भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिखा सकता हूँ, तो उनको सच में वेट कितना देने का। तो देन आई रियलाइज कि हम लोगों को और नॉलेज लेना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट कोर्सेज। हियर योर एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। अगर मैंने ऐसा बोला कि चलो मैं 10-15 साल फुटबॉल खेला, मैंने फिजिक अच्छा मेंटेन किया, मैंने मेरा फिटनेस अच्छा मेंटेन किया, मुझे सब कुछ पता है, देन आई गेस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, रादर एवरी डे यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। और जैसा आनंद वी कैन सी इन पुणे कितना गलत चीज हो रहा है, इवन इन इंडिया सो मेनी रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। एक उनको पता ही नहीं, जैसा एक इवन ट्रेनर्स भी गलत बोल रहे, बिकॉज उनका भी ट्रेनर्स का गलती क्या है, दे आर नॉट अपग्रेडेड। उन्होंने जो कोर्स किया है उसको 10 साल हुए, 10 साल पहले स्क्वाट्स एग्जांपल, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट सिंपल एक्सरसाइज, स्क्वाट्स कैसा करना चाहिए 10 साल पहले अलग था, 5 साल पहले अलग था, नाउ इट्स वेरी डिफरेंट। अभी ऐसा होने लगा कि कुछ कुछ क्लाइंट ट्रेनर्स को सिखाते कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा करने का है। तो उससे अच्छा अगर हम लोग को, इफ वी वांट टू टेक अ अपर हैंड, डेफिनेटली वी हैव टू बी पिन पॉइंट, मतलब हम लोग को उतना नॉलेज आना चाहिए। एंड कमिंग टू योर पॉइंट, एग्जैक्टली 6 years पहले जैसे मेरा my story started when it comes to the training part, I started getting interest in that. फुटबॉल में तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट है, नो डाउट, बट इन फिटनेस आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट। देन आई वाज वेरी क्यूरियस, मुझे रिजल्ट्स चाहिए कि अगर एक बंदा मेरे पास आए ट्रेनिंग के लिए, इवन इफ इज जॉइनिंग माय एकेडमी, एलएफएस और एलएफए व्हाटएवर, अगर वो किधर भी गया, देन ही शुड स्टे कि मुझे खाली एक्सरसाइज कैसे करने का ये पता नहीं है, रादर आई केम टू नो कि बॉडी का एनाटॉमी क्या रहता है, बॉडी में एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है। मैंने अगर आज लेग्स किए तो कल मुझे कोच बोल रहा है वापस लेग्स करो, तो मैंने लेग्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपको पता चलता है once you upgrade your knowledge. So my journey started like this, and now I'm at a such a stage, I'm enjoying my field. Usually ऐसा होता है कि किसने अगर डॉक्टर का डिग्री किया and if he's doing different job तो उसको मजा नहीं आएगा, but luckily I was a player, I'm still a player and I'm enjoying fitness, so it goes hand to hand. Now I'm just loving this field. That's like so wonderful. That's such a wonderful journey to start with, getting inspired with what is happening in the family. And at that age, you thought of all these things. That's beautiful.
And very honestly, I'm very happy that you came into fitness industry, because our industries have very less qualified people in our industry who teach the right things across and also have the right approach towards personal training. So I was very happy then when I saw you getting into fitness training. So welcome to fitness industry, and you did so splendidly well. And I have seen the growth that you have achieved. It's so beautiful. So my point is, we were talking about personal training. We do this in Hindi more because some people have commented कि आप हिंदी में बात कीजिए. Let's do it more in the Hindi. तो मैंने ये देखा है कि आप जस्ट बात कर रहे थे कि जैसे आप मेंबर्स को ट्रेन करने लगे और मेंबर्स बढ़ते गए. एंड आई रिमेम्बर यू वर द ट्रेनर जो एक महीने में यू जस्ट लॉन्च्ड एंड देयर वर सो मेनी पीपल coming and was started saying that I want to train with Laukik, I want to train with Laukik. Laukik did not have time anymore. 24 hours भी कम पड़ गए. So what was it? कुछ tips for our new personal trainers who are coming into the industry, sharing your knowledge, your tips and your approach कि ऐसा क्या हो गया कि बहुत सारे members को मैं देख रहा था एक साथ सबको Laukik के साथ ट्रेनिंग करना था. What was your analysis? एक्चुअली आनंद, इफ आई कंपेयर कि लोगों में क्या गलती हो रहा है या ट्रेनर्स में क्या गलती हो रहा है, ऑब्वियसली वी लर्न फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, मतलब एक दूसरे से हम लोग लर्न करते रहते किसका क्या गलती हो रहा है, किसका क्या गलती नहीं हो रहा है. बट आई वाज सो सरप्राइज कि मतलब आई यूज्ड टू गो 4 AM, मेरा 4 AM का भी ट्रेनिंग्स रहता था इन माय सोसाइटी. आई यूज्ड टू ट्रेन इन माय जिम. तो जब 4 बजे का ट्रेनिंग रहेगा, आई यूज्ड टू बी देयर 3:50. ओके, 3:50 AM आई यूज्ड टू गो ओवर देयर. सेम प्लेस इन द जिम व्हेन आई यूज्ड टू डू इन मल्टीपल जिम्स इन पुणे. अगर 6 o'clock का मेरा पीटी रहेगा, then I used to be maybe 10 minutes early in the gym. But I'm so surprised कि एक चीज जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला, because I am punctual in almost my young life. मतलब स्कूल टाइम से ही मुझे आदत है जल्दी स्टार्ट करने का सब कुछ. अभी ये पंक्चुअलिटी, दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मेनी ट्रेनर्स जो मैं देख रहा हूँ कि अगर बैच है, ट्रेनर आता है बट ट्रेनर आता ही नहीं है, पहला मेंबर है, रादर मेंबर को फोन करना पड़ता है कि अरे कौन मैनेजर कौन है, अरे अच्छा ट्रेनर नहीं आया मेरा. तो दैट इज सच अ बैड. मतलब अगर ट्रेनर उधर गया ही नहीं है, इसका मतलब ही वाज नॉट प्रिपेयर. आई वाज जस्ट टॉकिंग विथ यू, उसके पहले मैं जस्ट एक वन ऑफ माय 2 क्लाइंट्स, मेरा एक 1 वीक का, आई वाज जस्ट मेकिंग अ प्लान कि अगले वीक में हम लोग को क्या वर्कआउट है. सो व्हेन आई यूज्ड टू टॉक विद अदर ट्रेनर्स आल्सो, किसके पास प्लान ही नहीं है. चलो एक ने पीटी ले लिया, ट्रेनिंग ज्वाइन किया, नो प्रोफेशनलिज्म. तो मुझे डिफरेंस क्या लगा, व्हाट बेस्ट टिप आई विल लाइक टू गिव टू द मेंबर्स इज कि अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया कि उसको मैंने पर्सनल ट्रेनिंग उसने देखा है, इसके लिए वो ज्वाइन कर रहा है. रादर अभी ऐसा टाइम हो गया कि नाउ यू डोंट हैव टू गिव ट्रायल आल्सो, बिकॉज अभी लोगों को पता है कि नहीं बाबा ट्रेनिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, रादर और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं. तो माय सजेशन फॉर द ट्रेनर इज दे हैव टू बी पंक्चुअल फर्स्ट. सेकंड, दे आर नॉट इवन वेल ग्रूम्ड. वेल ग्रूम्ड मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दाढ़ी अच्छे से रखने का है, हेयर स्टाइल अच्छे से रखने का है, बट एटलीस्ट बी इन योर आउटफिट्स. अगर एक ट्रेनर है नॉर्मल इन नहीं है, शर्ट आउट है, शूज पहना है, तो शूज पता ही नहीं चल रहा है शूज पहना है कि नहीं है. आई हैव सीन ट्रेनर्स विदाउट शूज मेंबर्स को ट्रेनिंग करा रहे. ठीक है, अगर आप योगा कर रहे हो, अलग एक्सरसाइज ले रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड विदाउट शूज आप हो. बट व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर यू? मतलब फॉर मी इट्स ऑलवेज माय आइडियल, सो माय इंस्पिरेशन इज अ फिट पर्सन. ठीक है, कि एक फिट पर्सन इंस्पिरेशन रहना चाहिए. फॉर द मेंबर, ट्रेनर इज द इंस्पिरेशन. मतलब मेरे को ये ऐसे क्लाइंट्स आके बात करते थे कि सर वो ट्रेनर एक्सरसाइज क्यों नहीं करता, उसका खुद का पेट इतना है. अगर एक मेंबर दूसरे के बारे में ऐसा कमेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेट है मतलब गलत है, बट ही इज गोइंग टू लुक एट यू कि आप क्या सिखा रहे हो. और ये इंडिया में थोड़ा लैक होता है, बिकॉज लोग जैसा डिग्री करते हैं, नॉलेज आता है, सब सिखाते हैं हम लोगों को, स्क्वाट्स कैसे करने का है, आपने तो सब सीखा है, बट आप खुद कब कर रहे हो. दिस इज माई मेन पॉइंट कि ट्रेनर ही फिट नहीं है तो मेंबर क्या होने वाला है. तो उसके लिए क्या होता है कि ट्रेनर्स के पास ज्यादा क्लाइंट्स आते नहीं. एंड सेकंड थिंग इज, एक महीना का अगर किसने पीटी लिया तो ट्रेनर इज वेरी एक्साइटेड. एक महीना है, चलो 12 सेशन से, बट 12 सेशंस का बात ही नहीं. उसके बाद रिन्यूअल कैसे करेगा वो अगर आपने अच्छा ट्रीट नहीं किया तो. ऐसा नहीं है कि आपको उसके पीछे चलना चाहिए, रादर ही शुड रिन्यू. ही शुड से कि लौकिक आपके पास टाइम है क्या, मुझे साल भर का ब्लॉक करने का, मुझे साल भर आपका ट्रेनिंग चाहिए. एंड पीपल आर नॉट रिटेनिंग मेंबर्स, बिकॉज क्या होता है, एक महीना हो गया, इवन ट्रेनर्स ऑल्सो दे आर वेरी कैजुअल. मेंबर घर पे गया, खत्म, कि खाली एक मैसेज डालेंगे, सी यू टुमारो 7 फॉर द पीटी. ऐसा नहीं है, वो घर पे गए, यू शुड आस्क देम कि मैम आप थोड़ा सा पानी पीते रहो, कीप सिपिंग वाटर, कैसा है, बॉडी सोरने से क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या. हम लोग को इधर कैसा है, 1 घंटा हो गया, चलो मेरा कहानी खत्म.
तो मेंबर को यू आर नॉट ट्रीटिंग वेल. एंड जैसा मैंने आपको बताया आनंद, जैसा मैंने आपको बताया कि लाइक इन इंडिया प्रोफेशनलिज्म प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. पंक्चुअलिटी, वेल ग्रूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पर हम लोग ये सब सीखते हैं कोर्स में, पर हम लोग सीखने का भूल जाते हैं कि जस्ट सीख Right. लिया, डिग्री मिल गया, सर्टिफिकेशन मिला, बट यू हैव टू फॉलो दैट. अगर आपने फॉलो नहीं करेंगे तो आप उधर की उधर ही रहेंगे. आपको यंग लड़का आगे चला जाने वाला है. तो Correct. इवन आई नाउअडेज, इवन मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है एंड कभी कभी इवन आई फील बैड ऑल्सो. पीपल हु आर वेरी सीनियर टू मी, लाइक मोर देन 15 years 20 years, जिसका एक्सपीरियंस है ये इंडस्ट्री में, वो आके पूछते हैं कि लौकिक में ये कैसा करना चाहिए. तो कभी कभी अच्छा भी लगता है कि ओके दे आर ट्राइंग टू लर्न, पर कभी कभी खराब लगता है कि सर आप अपग्रेड क्यों नहीं हो रहे हो, आपके पास भी टैलेंट है. और इंडिया में Correct. दिस इज द, जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. बट माई टिप द मेन फॉर द ट्रेनर्स इज, अगर आपको क्लाइंट अच्छा रखने का है फॉर द लॉन्गर टर्म, आपको खुद को बहुत सीरियस रहना पड़ेगा एंड वेरी सीरियस. ऐसा नहीं कि आज मेंबर आया खत्म, वो मेंबर को याद करो 2-2 साल. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव ऑलमोस्ट 20-30 मेंबर्स हु आई एम ट्रेनिंग सिंस 5 years. मतलब मैंने 5 साल पहले जो ट्रेनिंग लिया है और अभी लिया, मतलब एग्जांपल जस्ट मैंने अगर एक एग्जांपल दिया तो 500 सेशंस तो हो गए हम लोग के 5 years में, 500 सेशंस. तो आई हैव टू बी Correct. सो यूनिक एंड सो फंक्शनलिटी रखना पड़ेगा कि मैंने जो पहले दिन एक्सरसाइज लिया है, मैं आज वही एक्सरसाइज नहीं ले सकता, मुझे वेरिएशन लाने का है. फॉर दैट वी हैव टू अपग्रेड. एंड दिस इज द बिग ड्रॉबैक इन ट्रेनर्स इन इंडिया की एक बार पुणे में किसने भी सर्टिफिकेशन कर लिया तो उसको अपग्रेड नहीं करते. इसके लिए अभी तुम्हें आनंद, यू हैव गिवन वन इंट्रोडक्शन राइट नाउ कि लेवल 1 आपने किया है, फिर लेवल 2 किया है, राइट. तो सेम लेवल 1 के बाद लेवल 2 क्यों है, लेवल 2 के बाद लेवल 3 क्यों है, ये ट्रेनर्स को पता ही नहीं. खाली एक डिग्री मिल गया, ओके फाइन. रादर आई एम डेस्परेट नाउ डेज टू सी कि कोई है क्या कोर्स, और कोई कोर्स है क्या, और कोई कोर्स है क्या. एंड वी गेट टू लर्न थिंग्स. Yes. दिस विल हेल्प द ट्रेनर्स. अगर ये अच्छे से किया लोगों ने, इफ दे आर वेरी प्रोफेशनल, तो आई डोंट थिंक सो उनको कुछ प्रॉब्लम आएगा क्लाइंट रिटर्न करने के लिए भी. That is so wonderful, and there are so many points. I'll just quickly want to summarize it. One, coming on Yes. time. So yes, always being punctual before your member. Second, exercising yourself and keeping yourself fit. Very important. Upgrading your knowledge. एक पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स कर लिया तो अच्छा सब आ गया, ऐसा नहीं होना. जैसे at ISFS also we have a personal training course, we have exercise nutrition course, we have special population course, we have master trainers course. Then to add into and get into the different ventures, different areas of fitness, we have kettlebell, or you can everything, functional training, Tabata, HIIT, battle rope, special, all of these courses. So you keep adding skills to yourself. So rightly that you said कि 500 सेशन हो गए हैं, अगर वही एक्सरसाइज लेते रहे तो what is the matter? Yes, certain things में वही एक्सरसाइज लेना भी पड़ता है, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ती है, बट वेरिएशन ऑल्सो मेंबर्स को अच्छा लगता है, कुछ मेंबर्स को अच्छा लगता है, एंड वी शुड गो फॉर इट. आई थिंक दीज आर सर्टन बेसिक पॉइंट्स जो आई थिंक एवरी ट्रेनर इफ ही इंक्लूड्स कैन रियली मेक पर्सनल ट्रेनिंग सक्सेसफुल and can retain the members for a longer period of time. That's wonderful. So knowledge. So Laukik, every time when you did some certification, you got knowledge. You upgraded yourself so many times. I used to see every time you going, and I've seen your Facebook also. Every few months there is one certificate that comes up. Laukik ने ये complete किया, ये upgrade किया, level 2 किया, level 3 किया, and I keep seeing those updates, and it's so wonderful. So what is it that you get every time you complete a certification, when you get that knowledge? Yes. So Anand, well said. जैसा हम लोग अभी वही इसके बारे में बात कर रहे थे कि if I want to give a variation, even I should know new things. ऐसा नहीं है कि अगर जिस दिन ट्रेनर ने ऐसा बोला कि मुझे सब कुछ पता है, वो ट्रेनर ही कभी नहीं हो सकता. He can't be a fitness expert. Rather every day we keep on learning. मतलब हम लोग YouTube पे भी जाएंगे या Google पे भी जाएंगे. There are so many exercise, मतलब हम लोग को टाइम भी नहीं मिलेगा देखने के लिए. But it makes sense. अभी जैसा example, I'm just trying to learn animal flow. अभी किसने सोचा भी नहीं कि एनिमल एक्सरसाइज से एनिमल फ्लो कुछ तो ऐसा निकलेगा, एंड दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ जिम एंड ऑल एक्सेट्रा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे कल एक मेंबर ने बोला कि सर मुझे एनिमल फ्लो करने का है, देन आई शुड बी रेडी टू टेक दैट. मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए ओके वेट सर, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ क्या है और मैं आपका लेता हूँ वैसा. दैट मीन्स आई डोंट हैव नॉलेज. तो अपग्रेडेशन द टॉपिक अभी जो हम लोग के बारे में बात कर रही है इसके बारे में, तो जब भी मैंने कुछ भी नया चीज लिया है, इट मोटिवेटेड मी 6 months 1 year बिकॉज आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट. अगर मैंने केटल बेल सीखा है, अगर कल एक मुझे किसको केटल बेल सिखाने का, एग्जांपल मेरे लोगो पे भी केटल बेल है, ठीक है, अगर मुझे कल किसने बोला सर आप केटल बेल करके दिखाओ, और मुझे खुद को ही पता नहीं केटल बेल क्या है,
then it shows कि I don't have knowledge. So even for that I learn kettlebell example. Then again same, if I'm doing some level 1 course, तो मुझे पहले ऐसा था कि लेवल 1 हो गया, चलो फाइन, मुझे एक तो सर्टिफिकेशन मिल गया, एक XYZ इंस्टीट्यूट है उसका मुझे लेवल 1 मिल गया, चलो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया. बट आई डोंट वांट दैट सर्टिफिकेट, आई वांट द अपग्रेडेशन. ओके लेवल 1 आ गया, अगर लेवल 1 में पास हो गया, चलो लेवल 2 में क्या है. लेवल 2 इसके लिए बिकॉज देयर आर एक्सपर्ट्स ओवर देयर हु आर टीचिंग समथिंग डिफरेंट. सेम देन अगेन आई एम गोइंग टू गो लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4. तो कमिंग टू योर डायरेक्टली टू योर पॉइंट कि एवरी डिग्री विच आई डिड इट मेड मी गेटिंग इन्वॉल्व मोर इनटू द फिटनेस. कि मुझे पता चला नहीं और मैं कुछ कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि पहले ऐसा लगता था चलो फिटनेस एक्सपर्ट या कोच का कितना करियर है, हार्डली 30, 35, 40. बट आई थिंक आपको एज भी नहीं पता चलेगा, आप खुद फिट रहेंगे तो देयर आर years and years you can train the people with the same intensity. rather we only get rather after a certain period उनके लिए हम लोग ही मोटिवेशन होते हैं. कि एग्जांपल एक सर का एज 20, यस, सो इट्स अ विक्ट्री फॉर देम कि यार हाँ यार मतलब सर भी अभी कितने फिट है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. आई वांट कि अगर मुझे किसने भी आके क्वेश्चन पूछा, माय वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, मुझे किसने भी आके क्वेश्चन पूछा तो आई फील कि मुझे उसके पास आंसर मिलना ही चाहिए. मेरे पास आंसर विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स. ऐसा नहीं मैं बोलना चाहिए एक जन ने मुझे बोला सर इससे क्या होता है, अगर मैंने ये एक्सरसाइज किया तो इससे क्या होने वाला है. मुझे पास वो आंसर रहेगा तभी रहेगा जब मुझे नॉलेज रहेगा. मुझे नॉलेज कब रहेगा, जब मैं कोर्सेज करने वाला हूँ. एंड ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी इंडस्ट्री में. बिकॉज देयर वाज टाइम्स व्हेन आई वाज जस्ट एज अ ट्रेनर. मैंने जब स्टार्ट किया था तो देयर वर क्लाइंट्स आस्किंग मी द क्वेश्चन जिसके मेरे पास आंसर नहीं थे. देन आई रियलाइज कि नहीं रहो कुछ तो है. अगर एक दूसरा ट्रेनर उसके बारे में जवाब दे रहा है और तेरे पास जवाब नहीं है, इसका मतलब तेरे पास नॉलेज नहीं. सो नाउ आई एम गेटिंग नॉलेज डे बाय डे. एंड जैसे मैंने पहले ही बोला कि आई एम डेस्परेट कि कौन सा कोर्स नया आ रहा है, कौन सा कोर्स नया आ रहा है. एंड आई कीप seeing that. Even I tell my friends also, दो ट्रेनर्स मेरे फ्रेंड हैं, उनको बार बार बोलते रहता हूँ कोविड, अभी कोविड का टाइम था, टाइम में go explore the things. Even if I'm not wrong, ISFS also started online coaching and all. So it's a wonderful thing. ये इतना अच्छा है, just go on the site, see the details. आप घर बैठ के, पता है कोविड में किसको भी कुछ काम नहीं था, but still you can upgrade. So और just to tell you, अगर डिग्री का बात चल रहा है तो recently everyone knows I'm a football player. But recently, just a month back, I did MS Dhoni का मैंने एक सर्टिफिकेशन किया. सबने मुझे बोला क्रिकेट में क्या है, बट नाउ ऐसा आई एम गेटिंग मोर क्लाइंट्स फ्रॉम द क्रिकेट नाउ. बट इट्स हैंड टू हैंड, फिटनेस इज हैंड्स टू हैंड. तो मैंने भी कोर्स इसके लिए किया था कि मुझे नॉलेज चाहिए, चलो उसमें क्या सीखना मिलेगा. बट नाउ आई एंडेड अप लाइक दिस कि हाँ यार मतलब क्रिकेट रिगार्डिंग में और स्पेसिफिक हो गया. इफ दैट गेम इज इन इंडिया वेरी पॉपुलर, बट नाउ आई कैन ट्रेन एनी एथलीट लाइक एनी स्पेसिफिक बिग लेवल क्रिकेट प्लेयर्स जो ऑलरेडी अप्रोच हो रहे हैं. So again coming, if you're doing certification आपको वैरायटी मिलेगा, आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा क्लाइंट्स भी आपको मिल सकते हैं. एंड एज यू सेड टाइम भी कम पड़ जाता है, 24 आवर्स. Absolutely. And fitness is basically हर एक स्पोर्ट, आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो तो आपको फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. डेफिनेटली कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हो, अगर किसी को क्रिकेट खेल रहे हो तो अगर आपको किसी क्रिकेटर को ट्रेन करना है तो यू नीड टू फर्स्ट हैव सम नॉलेज अबाउट दैट स्पोर्ट. अगर आप बैडमिंटन के लिए किसी को ट्रेन कर रहे हो, यू नीड टू हैव सम नॉलेज अबाउट दैट स्पोर्ट, सो यू नो व्हाट मसल्स आर बीइंग इन्वॉल्वड इन दैट. उसके स्किल्स हम कैसे और पॉलिश कर सकते हैं एंड उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं उसके फिटनेस के लिए. सो डेफिनेटली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड so happy to see that knowledge plays such an important role. And every time I have seen you doing certifications, I have seen you grow. I have seen a different confidence in you coming. एक अलग ही confidence आ जाता है आप. और जब आप members को भी train करते हो तो आपके पास ज्यादा answers है, plus correct answers है, right answers है when you're doing these upgradations. So that's a wonderful thing, Loki. Very interesting. एंड यस दैट्स द आइडिया. लॉकडाउन में भी हमने ये फिटनेस टॉक शुरू किया ISFS के प्लेटफॉर्म पे. ISFS भी यही दिमाग में लेके शुरू किया, एंड स्पेसिफिकली डिस्टेंस एजुकेशन, ताकि कोई भी कहीं से भी घर पे बैठे बैठे, वी हैव आवर कोर्सेज ऑन द मोबाइल फोन ऑल्सो, ऑन लैपटॉप, सो कोई कहीं से भी ये पढ़ सके एंड अपग्रेड कर सके खुद को. इनफैक्ट पीपल हु आर नॉट वांटिंग टू गेट इनटू द करियर ऑफ फिटनेस, वो भी खुद ये कहीं से भी कर सके. मतलब वो खुद के नॉलेज के लिए, जैसे आपने शुरुआत किया था खुद के फुटबॉल को इम्प्रूव करने के लिए, आप कहीं से भी कर सकते हो.
Wonderful, Laukik. So, tell us more about how is it ट्रेनिंग. So, मैंने आपको देखा है, आप बच्चों को भी ट्रेन करते हो, आप एल्डरली लोगों को भी ट्रेन करते हो, आप हर एक एज ग्रुप, मेल फीमेल, अलग अलग करियर्स में लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में उनको ट्रेन करते हो. सो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यू आर अ वर्सेटाइल ट्रेनर. हाउ डू यू डू दैट? Anand, actually, it's a good question. Basically, versatile is the demand of the generation right now. मतलब आप ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि like you don't know any client you can get. So like you can get kids, you can get senior Loki, citizens. you'll have to sit slightly behind. इंस्टाग्राम हमको कट कर देता है. हमने काफी बार बाद में देखा है कि इंस्टाग्राम अपने फेस को कट कर देता है. Yes, now you're perfect. Okay, so the thing is कि you have to be versatile because जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक 4 साल का लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है. It can be 20-25 years, it can be 35 years, it can be 60 years. So अगर एक जिम में जाते हो तो जिम में कभी ऐसा नहीं लिखा है, वो पहले था कि वुमेन जिम सेपरेट, मेन जिम सेपरेट, पर अभी यूनिसेक्स हो गया, अब एवरीवन इज देयर. तो ऐसा कभी जिम में रूल नहीं है कि इफ यू आर डूइंग जिमिंग ओनली अंडर 10 अलाउड, ओनली अंडर 15 अलाउड, ओनली अंडर 20 अलाउड. सो फॉर दैट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट एनी क्लाइंट. इट कैन बी एक 5 साल का भी बच्चा आज जिम में जाता है, पर इसका मतलब वो नहीं कि वो डंबल उठा रहा है. डिफरेंट एक्सरसाइज. लोगों के पास बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिम में जाके एक बच्चा जिम कैसे कर सकता है. दैट इज अ वेरी डीप टॉक. बट यू हैव टू बी वर्सेटाइल. इसलिए मैंने बताया कि इफ आई एम डूइंग फुटबॉल, तो मुझे जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि मैं क्रिकेट भी क्यों किया, बिकॉज मेरे पास सेम 2-3 लोग आए थे जो क्रिकेट में थे एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम. देन आई रियलाइज कि यस, उसमें भी हम लोग को नॉलेज चाहिए. एंड इन फ्यूचर इफ यू वांट टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री, अगर ये इंडस्ट्री में आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने का है, देन यू शुड नो नॉलेज, यू शुड हैव नॉलेज इन एवरी पार्ट ऑफ द फील्ड. कौन सा भी एज ग्रुप है, एज ग्रुप का भी उसमें कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है. देन आई रियलाइज कि I started getting the experience कि हाँ यार, मेरे पास 4 साल का बच्चा आ रहा है, 10 साल का आ रहा है, 15 साल का आ रहा है, पर अगर मैं एक 20 सपोज एग्जांपल एक फिट एथलीट इज देयर, 25 उसका एज रहेगा, मैं उसको जिमिंग कर रहा हूँ, अच्छे से स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो मैं उसको अगर वेट के साथ स्क्वाट्स कर रहा हूँ विद राइट पोस्चर्स एंड, तो मैं एक 10 साल के लड़के को नहीं बोल सकता, या मैं एक 65 एक सीनियर सिटीजन हु इज नॉट दैट फिट एग्जांपल, आई कैन नॉट टेल हिम. अगर उसको लोअर बैक इंजरी रहेगा तो मुझे पता चला हाँ यार, मतलब अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो मैं इंजरी लोगों को नहीं ट्रीट कर सकता. इफ इट एग्जांपल अगर मैंने बताया जाए कि अगर रिहाब का पार्ट हो गया कि जो जस्ट इंजरी हुआ और हमको उसको ट्रेन करने का, तो अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सॉरी मुझे कुछ पता नहीं, आप दूसरे के पास जाओ. इंस्टेड ऑफ दैट आई थॉट कि आई शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट, बिकॉज मुझे ऐसे भी क्लाइंट मिल रहे थे कि ठीक है लौकिक आप फिट हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं. एंड आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मुझे सबको फिटनेस प्रमोट करने का, सबसे इंपॉर्टेंट आई वांट टू प्रमोट फिटनेस. ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक इंजरी पर्सन है, मैं उसको बोलूं सॉरी मुझे कुछ पता नहीं, आप दूसरे के पास जाओ, दूसरा क्लाइंट. रादर आई शुड ट्रेन हिम, रादर इफ आई मेक हिम फिट इट विल बी अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी आल्सो. और मैं उसके बारे में 10 लोगों को बोल सकता हूँ कि अगर उसको एक इंजरी था फिर भी वो फिट हुआ एंड ही इज वेरी फिट नाउ. वेयर सेम अदर पर्सन जो इंजरी है वो सोच रहा है यार मुझे इंजरी है, मुझे इंजरी है. सो वर्सेटाइल, जैसा आनंद तूने अभी बोला था कि लाइक हाउ that is only because my eyes are always open, मुझे सब कुछ चाहिए. I want a person, maybe एक किड को भी मुझे ट्रेन करने का है, एक फीमेल को भी मुझे ट्रेन करने का है, मे बी इवन पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी लोगों को भी मुझे ट्रेन करने का है, बिकॉज दैट इज इंस्पिरेशन फॉर मी. मुझे ऐसा नहीं कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, मुझे फुटबॉल ही सिखाने का है. यस आई एम फुटबॉल प्लेयर, दैट इज माय फर्स्ट इंटेंशन, दैट इज माय फर्स्ट एक्सेप्टेड. बट अगर एक लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है और मे बी ही इज प्लेइंग कबड्डी, वो बोला सर आपके पास मुझे ट्रेन करना है, तो मैं उसको ऐसा बोलना चाहिए ठीक है, इफ आई एम नॉट अ कबड्डी प्लेयर बट स्टिल आई कैन टीच यू एजिलिटी मूवमेंट्स, मे बी कैचिंग कैसा करने का या पकड़ने का कैसा, आपका कोच आपसे सिखा सकता है, बट आपका डेवलपमेंट कैसा करने का स्पेसिफिकली मैं आपको सिखा सकता हूं. And Anand, to be very frank with you, nowadays the demand of the generation or demand of the market is you have to be versatile. तो ही आपको you can sustain for a longer time. नहीं तो आपके पास क्या होने वाला है, just एक पर्टिकुलर लोग ही आने वाले, maybe it can be only senior citizens, maybe it can be only kids. तो आप एक ही इसमें आगे जाएंगे, उसका भी लिमिटेशन रहेगा. तो better the thing is कि you be versatile, it is going to help trainer a lot. ये trainer को बहुत हेल्प करेगा. मेरा ये भी एक कंक्लूजन है कि
because you were a versatile trainer, I saw that a lot of people wanted to train with you because your potential clients was everybody. It was all age groups, Right. male, female, any industry, any sports person, any athlete. Everybody could train with you because you were a versatile trainer, and that's why you were not stuck with a certain amount, a certain kind of member. That's a great achievement, and that's why I think you've also grown very fast. So very nice. Other thing that I wanted to, दूसरा एक चीज बात करना था लौकिक कि ऐसी क्या चीजें हैं कि जिससे मेंबर्स तो यस मेंबर्स को हम कैसे कन्विंस करते हैं, जैसे हाउ डू यू कन्विंस अ मेंबर? आई हैव सीन यू doing so many videos on your social media. Every day you are doing some or the other kind of exercise. You're talking, you're creating more awareness about fitness. I think मेरा ये भी एक judgment है कि because you are continuous, you're consistent in what you are doing. आप जैसे हम देखेंगे कुछ ट्रेनर्स एक आध दिन एक वीडियो डाल दिया, एक आध दिन एक फोटो डाल दिया, एंड दे एक्सपेक्ट ओ मेंबर्स नहीं मिल रहे. बट व्हाट आई हैव सीन विथ यू इज यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर कवरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स. आप न्यूट्रिशन के बारे में कभी बात करते हो, आप कभी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हो, आप एक्सरसाइज में भी अलग अलग टाइप्स के एक्सरसाइज के बारे में बात करते हो, कभी हैंड स्टैंड कर रहे हो, कभी कोर के एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हो. सो दैट अट्रैक्ट्स सो मेनी पीपल. एंड आप इसके साथ कंसिस्टेंट हो, मतलब सालों से मैं देख रहा हूँ, रोज फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सारे सोशल मीडिया साइट्स हो, लौकिक इज देयर. He is talking to people, he is connecting with people, he is spreading fitness. I think that consistency also plays a major role in getting new members who are interested into fitness. So that's a brilliant thing that you are doing, and I think a lot of trainers, all of us, we should learn from this. That consistency is very, very important. Other point of mine is Laukik ki member retention is also very important. कि member को आप engage रखे, member आपके साथ सीखता रहे. तो ये retention के लिए what are certain tips that you can give? How can we retain a member? Right. आनंद, एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे हम लोग इसके बारे में जस्ट एक पहले बात किया था कि लाइक लोग क्या करते हैं, 1 महीना ट्रेनिंग होता है, उसके बाद खत्म. तो दे आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट मेंबर्स कि मेंबर घर पे जा रहा है, दूसरे दिन अल्टरनेट एग्जांपल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे उसका पर्सनल ट्रेनिंग सेशन है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हो गया, दैट्स इट. सैटरडे संडे ऑफ डे, खत्म. दे आर नॉट इवन सेंडिंग अ नॉर्मल मोटिवेशनल मैसेज आल्सो. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कौन सा तो कोड भेजो या पॉजिटिव कोड भेजो, बट एटलीस्ट यू कैन सेंड अ सिंपल मैसेज कि मैम इट्स वीकेंड और सर इट्स अ वीकेंड, जस्ट ईट हेल्दी. आप एक सिंपल मैसेज, मे बी उनको पता है कि वो होटल में जाने वाले हैं, इट्स अ वीकेंड, दे आर गोइंग टू एंजॉय द फूड, बट एटलीस्ट दे विल गेट अ गुड ऑप्शन फ्रॉम दैट. अगर वो होटल में खाना खा रहे हैं, उनके पास सब ऑप्शंस है, तो वो बोलेंगे ठीक है, मैं एटलीस्ट अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो आई जस्ट गो फॉर अ हेल्दी डिश ऑफ वेज, मे बी इट कैन बी सैलड और एनीथिंग लाइक दैट. इफ आई एम नॉन वेज, मे बी मैं थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक का ज्यादा ये करेंगे. तो रिटेंशन ये इंडिया में डेफिनेटली प्रॉब्लम है फॉर द ट्रेनर्स, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट केयर अबाउट द मेंबर आफ्टर दैट आवर. मतलब एग्जांपल 7 to 8 अगर मॉर्निंग पर्सनल ट्रेनिंग हो गया, मेंबर इज गोइंग होम, मे बी 1 महीना वो एंजॉय करेगा, 2 महीना एंजॉय करेगा, 3 महीने में उसको रिजल्ट मिलेगा, मे बी एग्जांपल he'll renew, मे बी 3 का 4 महीना हो जाएगा, 4 to 5, बट आफ्टर 5th month he is taking the same workout. जैसा अगर एक एग्जांपल स्क्वाट्स कर रहे हो, मे बी he is doing deadlift, सिंपल एक्सरसाइज, और मे बी जस्ट पुलिंग डाउन, लैट पुल डाउन एक्सरसाइज कर रहे हो, उसने क्या प्रोग्रेशन किया, बार बार डायरी में दिखा रहे कि मैम आप 50 kg करते थे, आपने 60 किया. तो मैम बोल रही है या सर बोल रहे हैं ये तो मैं 6 महीने से खाली 5-10 नहीं कर रही. इंस्टेड ऑफ दैट, मेक हर डू दैट एक्सरसाइज इन अ डिफरेंट वे, कि उनको वेरिएशन मिला, शी लाइक द एक्सरसाइजेस, कि हाँ यार ये कुछ तो मैं नया कर रही हूँ, ये आज मुझे कुछ नया किया. फॉरगेट अबाउट जिम. अभी देयर आर मेनी जिम्स कि जिसमें जिम में क्रॉसफिट है, जिम के बाजू में आउटडोर वर्कआउट भी है, जिम के बाजू में आपका टेकड़ी भी है. तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यूजुअली व्हाट आई डू इज कि इफ देयर इज अ सैटरडे संडे, आई नो आई हैव टाइम नेक्स्ट सैटरडे, मुझे टाइम है, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं आई विल से कि ठीक है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम लोग वर्कआउट कर ही रहे, चलो संडे को हम लोग ट्रेक के लिए जाएंगे. आप ऐसे भी वेकेशन के लिए 10 दिन जाते हो, एक दिन मेरे साथ आओ ट्रेक के लिए. ट्रेक कीपर दैट यू हैव टू पे 0 मनी फॉर दैट. ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप मेरे लिए पर्सनल ट्रेनिंग का पेमेंट्स कर रहे हो, इट्स ओके, वेल एंड गुड, पर संडे को आपको टाइम है, ओनली सर एंड मैम टेक ऑफ ओनली 20 मिनट्स ऑफ यू. हम लोग जाएंगे कोथुड में या व्हाटएवर एरिया इन पुणे और मे बी आउटसाइड, विल जस्ट गो, कुछ तो फन एक्टिविटी हो जाएगा. देन मे बी member get attract to that exercise also, then I can add that exercise in my exercise routine, तो और उसको एडवांटेज मिला. तो दिस इज द वे वी कैन रिटेन, बिकॉज
उनको वेरिएशन मिल रहा है, उनको बार बार पता चल रहा है हाँ यार लौकिक मुझे लेके जा रहा है, बट एवरी टाइम आई एम डूइंग डिफरेंट वर्कआउट्स. सर बोल रहे हैं लौकिक अरे आज क्या है, मतलब दे आर एक्साइटेड टू कम. अभी क्या हो रहा है, यूजुअली वन मेजॉरिटी टाइम्स मैंने ऐसा देखा है कि जो बाकी के मेंबर्स कन्वर्ट होकर हम लोग के पास आते हैं, दैट इज ओनली वन रीजन कि वो बोर हो गए. ऐसा नहीं कि वो ट्रेनर खराब है, ट्रेनर अच्छा है, पर वो वही वर्कआउट ले रहा है, वो उधर ही है, ही इज नॉट डूइंग एनी चेंज, बिकॉज ये एक जिम है तो ही इज इन दैट कंफर्ट जोन ना, उसको उधर से बाहर नहीं जा सकता. एंड टू रिटेन what my suggestion for the trainers or for the fitness expert is कि first look at the choice of the members. ऐसा हो सकता है कि अगर मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ तो ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड भी फुटबॉल प्लेयर है, तो उसको फुटबॉल रिगार्डिंग ही एक्सरसाइज अच्छे लगने वाले हैं, राइट? करेक्ट. बट आई कैन ऐड मेनी थिंग्स इन दैट, तो उसको वेरिएशन मिलेगा. वो फुटबॉल प्लेयर है, उसको मैं हाथ में बैट दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ चलो हम लोग एक अपर बॉडी का वर्कआउट करेंगे, आपको खाली बैट से मारने हैं, तो वो एक दिन अच्छा लगेगा उसको, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन उसको बोर होने वाला. See, if there is a कबड्डी प्लेयर, मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, उनको हेवी वेट्स मारने का आदत है, सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ मच नॉलेज यू हैव. तो कंसिस्टेंट आप मेंबर को रिटेन लॉन्ग टर्म कैसे करेंगे, लुक एट देयर चॉइस. इफ आई लव थाई फूड, मुझे अगर थाई फूड पसंद है और मैं नॉर्मल वेज रेस्टोरेंट में जाऊँ जिधर थाई फूड है ही नहीं, तो वो रेस्टोरेंट मुझे अच्छा लगने नहीं वाला है, राइट? बोर होने वाला है कि यार मैं थाई फूड खाने आया, तो मैं फैमिली को बोलूंगा ठीक है आप लोग पनीर खाओ, मुझे नहीं खाने. बट सबको मेरा चॉइस पता था ना, फैमिली को, उनको मेरा चॉइस पता है, तो वो उसके हिसाब से लेके जाएंगे जिधर थाई भी मिल रहा है, वेज भी मिल रहा है. सेम व्हेन इट कम्स टू द ट्रेनिंग पार्ट, वी शुड नो द चॉइस ऑफ द मेंबर. अगर मेंबर को मुझे पता है कि एक सीनियर सिटीजन है, उनको शोल्डर में इंजुरी है, और मैं उनको बोल रहा हूँ सर हेवी वेट मारो, अच्छे से कर रहे हो, इफ आई गिव हिम सिंपल एक्सरसाइजेस ही विल लव इट. आज उन्होंने मे बी एक जस्ट घर पे, अगर कोविड का टाइम है, वो घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मे बी डंबल नहीं उनके पास, आज उन्होंने एक बॉटल लिया है, ऊपर नीचे कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको. मे बी कल उनके पास एक स्टिक है जिसकी वजह से वो वॉक कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है वॉकिंग में, मैं उनको वही बोल सकता हूँ कि एक हाथ से सपोर्ट लो, वो स्टिक को ऊपर नीचे करो, उनको भी अच्छा लगेगा कि जिसका मैं सपोर्ट ले रहा था वो मेरे लिए तो और मोटिवेशन बन गया है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ वेरिएशन एंड ट्रेनर्स आर नॉट टेकिंग द वेरिएशन. इसलिए उनका पीटी कैसा रहता है, मेंबर एक ही बार पैसा भरता है. एग्जाम्पल इफ 10,000 इज फॉर 1 मंथ, वो 3 महीने का 30,000 भर दिया उसने, दैट्स इट. उसके बाद वो रिन्यू नहीं करेगा. अगर वो 2 महीने बाद ही देखना शुरू करता है कि मैं और किसके पास जाऊं, और मैं किसके पास जाऊं, और मैं किसके पास जाऊं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वेरिएशन फॉर दैट. सो माय सजेशन फॉर एवरीवन इज कि बी वर्सेटाइल से ज्यादा बी वर्कआउट्स आर ऑल अबाउट वेरिएशंस. मैं सबको वही बोलते रहता हूँ कि वर्कआउट्स आर ऑल अबाउट वेरिएशंस. टेक वेरिएशंस. भले फुटबॉल प्लेयर भी है, मैं उसको फुटबॉल ही नहीं खिलाऊंगा, कभी तो खिलाऊंगा, और उसको मैं ऐसे गेम्स में इन्वॉल्व करूंगा, ही लव दैट. इफ आई एम डूइंग जिम, मैंने एक एक्सरसाइज दिया है, सपोज चेस्ट प्रेस दिया है, तुरंत मैं बोलूंगा जाओ हाई नीज करो, उसको थोड़ा मजा आएगा. भले उसका और उसका ज्यादा लेना देना नहीं रहेगा, बट आई कैन डू दैट. अपर बॉडी भी मिक्स कर दिया, लोअर बॉडी भी मिक्स कर दिया. पर ट्रेनर्स क्या करते, पहले से लिख लेते, ठीक है प्लानिंग इज वेरी गुड एंड यू शुड हैव प्लानिंग, बट प्लानिंग आपने किया कि मुझे आज ये एक्सरसाइज लेने की XYZ, एंड यू कैन सी दैट कि मेंबर को बोर हो रहा है, फिर भी ट्रेनर क्या बोलता है, नहीं सर मैंने लिखा है ना आपको 10 के 10 करने ही पड़ेंगे. उधर मेंबर नीचे भी नहीं बैठ पा रहा है, फिर भी आप उसको करा रहे हो. रादर लिसन टू हिम ना, ही इज सेइंग सर मुझे बोर हो रहा है एक्सरसाइज, इट्स ओके सर बोर हो रहा है, चलो ये एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, दूसरे इसमें करेंगे, बट डू द लेग एक्सरसाइज इन डिफरेंट वे. इन इंडिया मेजॉरिटी पीपल दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ लेग्स, लेग्स उनको पसंद नहीं, इसलिए ज्यादा करके कोई लेग्स करता नहीं. देन गिव वेरिएशन. कोई उनको बताए. This is such an important point. Member psychology. हर एक दिन मेंबर के लिए सेम नहीं है, जैसे आप बहुत बोल रहे हो, हर एक दिन मेंबर की अलग है, वो अलग मूड में है, वो अलग शेप में है, उसका आज एनर्जी लेवल अलग है. तो व्हाट यू आर सेइंग आई कैन सो रिलेट टू दैट कि आप समझो कि व्हाट योर मेंबर इज लुकिंग फॉर एंड गिव हिम दैट ही वांट्स, गिव हिम द बेस्ट, उसमें आप उसको बेस्ट देने की कोशिश करो. सो बीइंग वर्सेटाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स सच अ वंडरफुल पॉइंट. Also yes, you are giving this extra time to your members. You go out for treks with them, you go play sports with them. That's a very good way of connecting and bonding with your members, because when you are mentally connected with your members and you are well bonded with your members, you have the faith and trust, and in fact उस चीज का फायदा ट्रेनिंग में भी होता है. मेंबर आपके साथ ज्यादा अच्छे से ट्रेन करता है. So these are such wonderful points, and definitely ये सारी, इतना जब कोई efforts मेंबर वीकेंड पे जा रहा है और आप बोल रहे हो आप उसको इसके साथ टच में रहो, याद करो उसको, हेल्थ थोड़ा सा टिप्स दो, सो इम्पोर्टेंट. अगर आप 4 टिप्स दोगे उसमें से एक टिप तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, एंड दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस.
So Right. friends, this is such important points from Lokik, and I feel अगर ये चीजें implement कोई करे तो you will have great member retention. आपके members भी खुश रहेंगे, उनको अच्छे results मिलेंगे, and you will do very good. It is also ये सारी चीजें brand building में भी बहुत help करेंगी. That's how you create your own brand. And that's how also money is important. You make good money. Wonderful, Lokik. That was so wonderful talking to you about all these topics. I want, we are in this pandemic situation, so there are a lot of viewers who are not trainers. For them, what is your tip to stay and fight this pandemic? Right. Lokik, आनंद, so actually this is a very very good question. Just इसके बारे में जो क्वेश्चन था उसमें मुझे ऐड करने का है. I just recollect, just मुझे याद है एक चीज कि what variety we can give. तो like majority members, you know, when we get attached to the bonding अच्छा होता है, तो they invite for the dinner, they invite for coffee and all like that. ठीक है. तो मैं सबको वही बोलता हूँ, मुझे कॉफी के लिए भी लोग बोलते हैं कॉफी टी पियेंगे. मेरा सबसे पहला यही रहता है कि मैम कितने बजे जा रहे हैं, सर कितने बजे हम लोग कॉफी पीने जाएंगे, हम लोग का ग्रुप है, ठीक है, कितने बजे जाएंगे, 8 o'clock. वेरी नाइस सर, परफेक्ट. 7:30 बजे जाएंगे हम लोग. अगर एग्जाम्पल एफसी रोड पे जा रहे हैं तो एफसी के टेक्निक पे मिलेंगे. 7:30 to 8 we'll enjoy the workouts and then we'll have a coffee. It makes more sense कि अगर मुझे कॉफी पीने का, अगर मैं ही उनको आदत लगा रहा हूँ कि चलो डिनर के लिए, और डिनर भी मैं ऐसा खा रहा हूँ कि वो सोच रहे यार सर भी मतलब हम लोग जैसे ही खाते, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट. तो अगेन वेरी गुड पार्ट जो मुझे भी बहुत एडवांटेज मिला है कि इफ वी आर प्रोफेशनल, मतलब इवन व्हेन वी गो फॉर द कॉफी और मे बी फॉर द टी, एवरीवन नोज दैट वी डोंट हैव मच शुगर. सबको पता है. तो इवन मेंबर्स भी अलर्ट रहते हैं, हाँ यार मतलब सर ही इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते, तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा. तो एक जस्ट ये पॉइंट मुझे ऐड करने का था. एंड नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, being role models to your members. Exactly. So true. And So true. Anand, if you can see properly, I may maybe it must be not seen, but my tagline of Lokik Fitness and Sports, it's a be an inspiration. So I always try कि जो बताया है वो हम लोग को करना ही पड़ेगा. Same applies to me, my coaches, my team, entire person. कि अगर आप LFS के पार्ट हो तो आपका टैगलाइन आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि एक किड या एक मेंबर आपको एज अ कोच देख रहा है, बट यू शुड बी द इंस्पिरेशन फॉर हिम. यार नहीं मुझे ऐसा ही होने का है. Correct. तो True. दिस इज लाइक दैट. एंड एडिंग टू योर पॉइंट नाउ, पैंडेमिक सिचुएशन, यस, ये तो सबसे, ये चीज ऐसी थी कि कोई भी नहीं सोचा कि पैंडेमिक सिचुएशन ऐसा आएगा, जिम बंद हो जाएगा लाइक एंड एवरीथिंग. बट एक चीज सबको पता चल गई कि लाइक फॉरगेट अबाउट किसने जिम बंद रखा है या जिम चालू रखा है या व्हाटएवर, उसमें हम लोग को ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाने का है. बट इफ यू आर एट होम, आई वाज सो सरप्राइज कि अभी मेजॉरिटी मेरे पास मेंबर्स आ रहे हैं वो पुट ऑन, डेफिनेटली घर पे बैठे. आई वाज सो सरप्राइज कि लोग पुट ऑन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आप अगर घर पे हो तो रादर आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है खुद के ऊपर ध्यान रखने के लिए. पहले आप सुबह नहीं उठ पाते थे, इट्स ओके, 10 बजे उठो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है. पर पहले आपके पास टाइम नहीं था वर्कआउट करने का, आज आपके पास टाइम ही टाइम है. तो लोगों को क्या लगता है जिम में ही जाके बॉडी बनने वाला है. ठीक है, जिम में जाके आपका प्रोग्रेशन होगा, बट अगर आप पैंडेमिक सिचुएशन में हो, आप घर पे हो, यू कैन बी मोर स्ट्रिक्ट विथ योर ईटिंग हैबिट्स. एंड अभी भी लॉकडाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है, अभी भी लोग घर पे है. माय ओनली सजेशन टू देम इज कि देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस यू कैन डू एट होम. सिंपल बकेट, सिंपल वाटर बॉटल्स, सिंपल चेयर. जैसे मैंने सीनियर सिटीजन्स के मैंने स्टिक का भी बोला, बिकॉज ऐसा एक्सरसाइज हुआ है हम लोगों को. बिकॉज बहुत दिनों से मैं एक सर को ट्रेन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ तो अलग करेंगे. बिकॉज घर पे भी इतना इक्विपमेंट्स है, जिम में आपके पास क्या है, डंबल है, बारबल है, मशीन है, दैट्स इट. मे बी क्रॉसफिट्स का इक्विपमेंट्स रहेगा. घर पे तो आपके पास कितना कुछ है. मे बी एक पेन, इवन विद द पेन यू कैन डू द एक्सरसाइज. सो माय सजेशन टू एवरी पर्सन इज कि अगर आप घर पे हो, यू कैन बी मोर सीरियस राइट नाउ. अभी आप खुद के ऊपर ध्यान रखो. इफ यू आर मे बी मैरिड, अगर आपका शादी हुआ है, तो मेक श्योर आपके जो किड्स रहेंगे, फॉर देम यू आर द रोल मॉडल. अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक अनहेल्दी डिश में मंगा रहा हूँ, एक अनहेल्दी डिश में लेके आया बाहर से, और एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग माय किड ओके यू आल्सो हैव दैट, तो उसको मैंने आदत वही लगा दिया है. पर अगर पैंडेमिक में सब लोग घर पे हैं, यू हैव अ वंडरफुल चांस कि आप घर पे बनाओ, अच्छे से बनाओ. इवन ऑर्डर भी कर रहे हो तो ऑर्डर समथिंग हेल्दी, मे बी इट कैन बी सैलड्स. कितने अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट है, कितने अच्छे वैरायटी है विच यू कैन हैव फूड. ऐसा नहीं है कि जंक फूड बहुत अनहेल्दी है, जंक फूड में भी कितना वैरायटी है विच यू कैन हैव. बट लोग अभी घर पे हैं तो उन्होंने बहुत नेगेटिव हो गए कि यार सबसे पहला रादर देयर आर टू पीपल राइट नाउ. एक ऐसा है कि जो बहुत एक्सरसाइज करते थे, एक है जो कुछ भी नहीं करते थे, इसलिए पुट ऑन किया. और पुट ऑन इतना किया है कि
सब लोग एक्साइटेड थे, जिम कब चालू होगा, जिम कब चालू होगा, पर कितने जन जिम में जा रहे हैं, राइट? एवरीवन इज एक्साइटेड। अगर इतने एक्साइटेड रहेंगे आप लोग तो आपको जिम जाना चाहिए ना, बट कोई भी जिम नहीं जा रहा है। खाली नहीं, जिम बंद, जिम चालू ही होना चाहिए, चालू ही होना चाहिए। रादर आई एम वेरी सरप्राइज कि सबसे पहला भीड़ जिम में होना चाहिए, बट वो नहीं है, बिकॉज अभी भी लोग उसको मायने नहीं रखता। And obviously, Anand, I don't drink much. I don't take any alcohol. But whenever मैं रनिंग जब भी करता हूँ इवनिंग को इन माय एरिया, आई गो फॉर द रनिंग ना, उधर जिम है एक नॉर्मल, ठीक है, मुझे नाम नहीं लेने का जिम का, उधर जिम है। मैंने बार बार देखा, जस्ट एंट्रेंस है, रोड टच जिम है, जिम के एंट्रेंस में ना उधर कोई भी नहीं रहता। कभी मैं बार बार देखता हूँ इवनिंग, वेरी प्राइम टाइम, एग्जाम्पल इन आर इंडस्ट्री लाइक मॉर्निंग मे बी 5 to 10 इज अ प्राइम टाइम, मे बी इवनिंग 5 to 10 इज अ प्राइम टाइम। मैं उधर जाता हूँ ना, एवरी टाइम इज अ प्राइम टाइम फॉर दैट वाइन शॉप। मैं जब भी जाता हूँ कंटिन्यूस क्राउड रहता है, और मैं उसके बाजू में ही जिम है थोड़ा सा दूर, मैं देखता हूँ उधर कोई भी नहीं आता। बिकॉज ये प्रॉब्लम है लोगों का कि घर बैठे आपको पता ही नहीं कि इतना प्रॉब्लम है पैंडेमिक में। पैंडेमिक ने भी आपको क्या सिखाया है, यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे, टीवी पे ऐड देख के नहीं कि एक ने किसने एक कुछ तो मिल्क का डाल दिया कि ये पियो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, ये करो। अरे इट्स सिंपल, जस्ट एक्सरसाइज तो करो। सो ट्रू, सो ट्रू। एंड हम लोगों ने देखा था कि जब अल्कोहल शुरू हुआ था तो इतना सारा लाइन लग गया था, और आज जब जिम शुरू हो गया है तो जिम में जब एक दिन में 350-400 लोग, 500 लोग एक दिन में आते थे एक्सरसाइज के लिए, आज हार्डली 20-25 लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। और वही अगर आप रेस्टोरेंट में जाके देखो तो रेस्टोरेंट में सब जा रहे हैं, वहां पे किसी को कोरोना नहीं हो रहा है, जिम में सबको कोरोना हो रहा है। Exactly. And height of all is, Anand, like even in this, people are asking कि मुझे डिस्काउंट क्या मिलेगा एक्सरसाइज के लिए। अरे आपने एक्सरसाइज कब किया था? आप साल भर तो आओ ना। अगर इफ माय ब्रांड इज देयर, इफ यू आर कमिंग टू मी फॉर 1 year, मैं आपको 2 महीना फ्री दूंगा ना, पर 1 साल तो आप आओ। यही आप जब लिकर शॉप में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, उसको बोलते हो क्या बिल के लिए, रेप्यूटेड ब्रांड रहेगा कुछ रेस्टोरेंट का, आप बोलते हो उनको अरे यार 2000 बिल दिया है, उसमें से डिस्काउंट करके मुझे 1500 करो? नहीं होने वाला है ऐसा, नहीं होता है। And That's such a wonderful thing. तो आई होप कि ये पैंडेमिक हुआ था, कुछ कुछ चीजें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छे के लिए भी होती है, कितना सीखने भी मिला। तो मेरा तो ऐसा ही बोलने का मतलब है कि अभी लोगों को पता चला पैंडेमिक सिचुएशन हुआ है, एटलीस्ट द व्यूअर्स हु आर राइट नाउ, जो भी अभी सुन रहे हैं, माय वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल कि एटलीस्ट बी सीरियस नाउ। ठीक है, आप पहले सीरियस नहीं थे, ओके, अभी भी सब चला नहीं गया, इट मे बी कोविड, उसके बाद क्या आएगा, अभी न्यूज तो 10 चलते रहते कि ये आएगा वो आएगा। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अगर आप रेडी नहीं हो, एंड ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में ही ये चीज करो, आप जितने बार रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वेरी नाइस, उससे दुगना एक्सरसाइज भी करो। इफ यू आर टेकिंग अल्कोहल ओकेजनली, ट्राई टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ओकेजनली करते हो, पर ओकेजनली मतलब पहले कैसा था कि महीने में एक बार कोई तो करता था, अभी ओकेजनली मतलब 2-3 दिन में ओकेजनली, इट्स लाइक दैट। सो वेरी ट्रू, सो डू एक्सरसाइज, सिंपल। एवरीवन नोज कि रेस्टोरेंट्स में या बाहर जाके हम लोग कितना कैलोरीज खाता है। एक तो बीच में मैंने एक बार दिवाली में भी डाला था कि लाइक 1 चकली इज इक्वल टू हाउ मच कैलोरीज। इमेजिन 5-5 चकली खाओ ना, किसने नहीं बोला है, इंडियन ट्रेडिशंस आर टू एंजॉय, एंजॉय ही तो करने का है। पर आप 5-5 चकली खा रहे हो और आप एक भी राउंड नहीं भाग रहे हो ग्राउंड को, बाहर कब जाएगा वो सब? इधर सभी प्रॉब्लम, इधर सभी प्रॉब्लम, और बाद में आके बोलेंगे सर कुछ नहीं हुआ है, खाली मेरा पेट भर गया। वो तो होने वाला है। This is such wonderful talk and so realistic and so touching, and everybody can relate to this. It's so true. So I think आपने जो भी आज शेयर किया हमारे साथ, ये बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स के लिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपने कवर किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो करने चाहिए वो आपने शेयर किए हैं, एंड डेफिनेटली फिटनेस इंडस्ट्री एंड ऑल द ट्रेनर्स विल benefit from this. I myself have realized a few things when you were talking, and yes, I will also try to implement that. My next round, I just wanted to have a quick rapid. We have last 5 minutes with us for this Instagram live to close, so we'll quickly go for a rapid fire round with Laukik. Now, because I know Laukik in a few things, I have some questions, interesting questions for him. Your answers have to be really rapid. My first question to you is: football or fitness industry? Football. Wonderful. Weight training or functional training? Well, this is a very tricky question, but I'll go for functional training more. Superb. Playing yourself in football or coaching
for football? Oh, Anand, this is very tricky. This is not fair. I know you very well, brother. Playing. I'll go for playing. Playing. Superb. My next question to you is taking personal training or conducting group classes? I know you do both splendidly. But what do you like more? My God, all the questions are very tricky. But I guess I love functional training more in group batches because, as we said, we can keep people consistent for longer duration. They'll enjoy in groups. Yes, true, true, true. And my one more question to you is, what do you generally prefer on your cheat day? What do you My prefer cheat eating? day. My cheat day, I go to an amazing restaurants, but I just go for starters. So my cheat day is only starters. If I go in barbecue nation, Yeah, I'll just go for starters, but don't go for the main course. Then I'll enjoy the food. that is wonderful. And my last question, which you will really love, who is your favorite fitness model, Tiger Shroff or Akshay Kumar? My God, Anand, this is a very very tricky question because I have to give answer to the both the person. Tiger Shroff, no doubt, my inspiration because like he's insane. But Akshay Yes, Kumar, especially I want to tell you this in COVID, I was reading articles about him, so I started loving him more because what he's doing exactly the same thing I'm doing now. When it comes to the time duration, like what time he wakes up, why he's fit right now. Obviously, he must be not having six packs and eight packs and all, but he's very fit right now at that age correct, also. correct. Akshay Kumar and Tiger Shroff. This is a very difficult question, but I'll go for maybe Tiger Shroff and Akshay Kumar. I'll be respecting him till entire life because उसके वजह से ही मैं आजकल जल्दी मैं पहले ऐसा मुझे लगता था 5-6 बजे मैं उठता हूँ मैं सबसे पहले उठता हूँ बाद में when I started reading about him I came to know he wakes up at 4 a.m. since 25 years then I was like okay Wow. मैं गलत हूँ now I am started loving Akshay Kumar because lifestyle what he has kept is Yes, amazing wonderful lifestyle. Yes. So you did yeah. splendidly in your rapid fire round, Laukik. Thank you very much for being with us today and giving your time and sharing such wonderful tips and your experience and your journey with us. It was our complete and absolute pleasure to have you on the show. And I am so proud of what you are today. And I have that respect for you. Thank you for coming on the show, Laukik. Thank you Anand thank you very much see you soon and thanks a lot See you soon. ISFS for inviting me thank you Thank you. So, friends, that was Mr. Laukik Zada. He is an amazing person and inspiration, and I really am so proud of him. He's done so splendidly well. So once again, this was our personal training maestro, Mr. Laukik Zada, on season 4, episode 3 of Fitness Talks with Anand on the platform of ISFS, that is ISST School of Fitness Sciences. We are into education of everything that is there in the fitness industry. You can go to our website www.theisfs.com. You'll get all our details there, and we hope to see you very soon. This program is in association with United Health and Fitness Federation. That's the first registered federation in fitness industry. Thank you all for sparing time and coming with us today, and we'll see you next Friday at 5 o'clock once again on Fitness Talks with Anand.